Yesterday I have discussed about nomenclature and classification. So classification have some important point, and one of the most important point is nomenclature. Nomenclature. What is nomenclature? Nomenclature means simply you can understand that naming of anything, any organism basically. Naming of any organism. Organisms may be of two types, either plant or animal. Okay. So here I just want to teach you about two basic organizations, those who are dealing with the naming of the organism, plants and animal. So the first committee or the first body in the world that is naming to the other, that is naming to all plants, it is ICBN. What is ICBN? ICBN is the body in the world that gives the name to the plants. Its full form is International Code for Botanical Nomenclature. It deals with the plants, and all of you know very well that what is botany? Botany means study of plant. Study of plants. So when the new plants has been discovered wherever in the world, in any corner of the world, the ICBN tries to give name to that plant. Okay, and plants studied under botany, so that particular committee is called International Code for Botanical Nomenclature. Similarly, when any new species of individual of any animal is discovered, it is named by ICZN. What is ICZN? ICZN stands for International Code for Zoological Nomenclature. So, what is zoology? Zoology means study of animals. So now all of you understand that when animal study or new animal has been discovered or any new species has been discovered, it will dealt by ICZN, and when any new plant has been discovered, it is named by ICBN. Okay, so these are the two basic and very important bodies who are providing a new name or a scientific name to any newly discovered species. Okay, the next most important point is, the first one was nomenclature, and the number 2 is systematics. What is meant by systematics? What is the meaning of systematic? All of you are in daily life, you are understanding the word do the things systematic, work systematically, study systematically, play systematically, sleep systematically, eat systematically. What is the meaning of systematically? Systematic means any step by step work that is conducted in a particular way. So systematics is the study of diversity of organism and all the comparative and evolutionary relationship. What is the evolutionary relationship? It will discuss later. I will discuss it later. Okay, systematic relationship or evolutionary relationship. It will come under the system of classifications. Okay. So now I will start its subdivision. Systematic subdivision. So systematic subdivision have following points. Number A, systems of classification. Systems of classification.
ओके, सो एक्चुअली स्टूडेंट्स मैं कुछ 2 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली भूल रहा था, तो मैं इसको फिर से ऐड कर दे रहा हूँ यहाँ पे. दीज आर लेफ्ट बिहाइंड. Before studying about systematics, there are 2 points of classification are here, nomenclature about. So, who is the father of classification? First, note. Just concluding the note. Note number 1. Who is the father of classification? He is Carolus Linnaeus or Carl von Linné. So, spelling कुछ भी इधर उधर हो सकती है. Don't worry, but I will try to write correctly. Carolus Linnaeus. He is the father of क्लासिफिकेशन. याद रखना, इनको फादर ऑफ क्लासिफिकेशन भी हैं और इन्होंने ही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था. और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, मैं उसको इसको डिस्कस करूंगा. ये मैं इस टॉपिक में थोड़ा सा रोक रहा हूं स्टूडेंट्स, ठीक है, सॉरी फॉर दैट. ओके, सो कैरोलस लीनियस इज द फादर ऑफ क्लासिफिकेशन एंड ही रोट सम बुक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स. सो हिज फर्स्ट बुक एंड वेरी इंपॉर्टेंट बुक इज स्पीशीज प्लैनेटेरम. स्पीशीज प्लैनेटेरम. प्लैनेटेरम स्टूडेंट्स, स्पेलिंग आप लोग चेक कर लेना, उसमें दाएं बाएं थोड़ा सा हो सकता है, डजंट मैटर, सो चेक इट वेरी केयरफुली. सो स्पीशीज प्लैनेटेरम. नाउ आई विल डिस्कस मोर अबाउट some of the work of Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus have given a very special system of classification called binomial nomenclature. Binomial nomenclature includes a very systematic work. Bi means two and nomen means names. Any species of animal or plant having two names, while we are writing its scientific name, the first name is of its generic name और दूसरा भैया होता है इट इज स्पेसिफिक एपिथेट. फॉर एग्जाम्पल मैंगो. मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है बताओ? मैंजीफेरा इंडिका. मैंजीफेरा इंडिका. इसके रूल्स आप लोग 9th में पढ़ चुके हो. मैंजीफेरा का एम कैपिटल रहेगा, इंडिका का आई स्मॉल रहेगा एंड दे शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन. ठीक है, इसी तरीके से आप और एग्जाम्पल कुछ देख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल रैट. रैट का क्या होता है, सबको पता होगा, रैटस अंडरलाइन, रैटस अंडरलाइन. ओके, सो दिस इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. ओके, सो आगे डिस्कस करेंगे. आईसीबीएन आईसीजेडएन डिस्कस कर चुका हूं मैं. कुछ बुक्स हैं इनकी, आप लोग जान लीजिए इनकी बुक्स कौन कौन सी हैं. कैरोलस लीनियस की स्पीशीज प्लैनेटेरम तो हो ही गई है. इसके बाद एक बुक थी इनकी, नाम क्या है बुक का, मैंने तो भूल रहा हूँ. स्पीशीज प्लैनेटेरम के अलावा सिस्टेमा नेचुरी. यस, एक तो स्पीशीज प्लैनेटेरम ये वाली थी और यहीं पे मैं थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ. नंबर 3 पे ऐड कर लो, सिस्टेमा नेचुरी. ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है. और हाँ, आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट इस एक पॉइंट को मैंने सुन लीजिए ध्यान से कि जो सिस्टेमा नेचुरी है या स्पीशीज प्लैनेटेरम है, नीट में ये भले ही आपसे ना पूछी जाए, बट इन अनदर वन डे एग्जाम, अनदर कंपटीशन एग्जाम ऑफ बायोलॉजी, दीज बोथ बुक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस देना है, कुछ बच्चे देते हैं, कुछ बच्चे डी फार्मा के लिए भी देते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो बीएससी नर्सिंग के लिए देते हैं या दूसरे कंपटीशन एग्जाम के लिए देते हैं, उनके लिए ये क्वेश्चंस बहुत पैड हैं. जैसे कि हु हैव गिवन द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, व्हाट इज द नेम ऑफ कैरोलस लीनियस रिटन अ बुक, रोट अ बुक. सो इट इज 4 ऑप्शन दे देंगे या 1 ऑप्शन दे देंगे, इसमें से एक सही होगा, आपको टिक कर लेना होगा. ठीक है, इनके फुल फॉर्म्स भी कभी कभी पूछे गए हैं डिफरेंट कॉम्पिटिशंस में. तो ये आपके जो कॉम्पिटिशन के से रिलेटेड वर्क है मैं आपको बता रहा था. ओके, सो नेक्स्ट आईसीबीएन आईसीजेडएन डिस्क्राइब हो चुका है. उसके रूल्स आपको आई होप पता होंगे, तो थोड़ा सा एक शॉर्ट वे में जान लीजिए कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो नेम्स होते हैं, चाहे जेनरिक नेम हो या स्पेसिफिक एपिथेट हो, इनको कैसे लिखते हैं. इनको इटैलिक्स में लिखते हैं, सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं,
सेपरेटली, दे बोथ नेम्स शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन। और साथ ही साथ क्या होता है कि इनमें जो जेनेरिक नेम होता है वो कैपिटल लेटर से वो स्टार्ट किया जाता है, और जो स्पीशीज नेम होता है, स्पीशीज नेम, वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया जाता है। तो दीज आर सम बेसिक पॉइंट्स यू नो। ओके, क्लासिफिकेशन। नाउ आई विल स्टार्ट अ न्यू हेडिंग दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, जो यहाँ छूट गई थी, मैं उसको स्टार्ट करने जा रहा हूं। क्लासिफिकेशन मीन्स क्या होता है? अरेंजमेंट of any organism, either plant or animal, into different categories according to their similarities and dissimilarities. So categorization of animals or plants according to their similarities and dissimilarities is called classification. So classification क्या होता है? Classification 3 types का होता है, आप सब लोग समझ लीजिए इस बात को। Classification 3 types का होता है। सबसे पहला classification होता है artificial system of classification. Artificial system of classification क्या होता है? Simply when the simple characters have been taken, simple characters, either the given plant is herb, shrub or tree, the plants when are classified into different groups, it is called artificial system of classification. तो ये बहुत सिंपल कैरेक्टर्स को लेते हुए जब प्लांट को हम क्लासिफाई कर देते हैं उसे आर्टिफिशियल सिस्टम कहते हैं। सेकंड वन इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें क्या करते हैं? इसमें प्लांट के सिंपल कैरेक्टर्स को देखते हैं, इसके साथ ही साथ टुगेदर, इसके साथ ही साथ कुछ और फीचर्स डीपली हम लोग स्टडी करते हैं कि उसके लीफ का स्ट्रक्चर कैसा है, स्टेम का स्ट्रक्चर कैसा है और रूट कैसी है। सो व्हेन वी आर एम्फसाइजिंग ऑन सिंपल कैरेक्टर्स एंड एडिंग ऑन विद द मॉर्फोलॉजिकल फीचर, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, then it is called the natural system of classification. And the third one is phylogenetic system of classification. Phylogenetic system of classification. तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइलोजेनेटिक सिस्टम में क्या होता है? फाइलोजेनेटिक सिस्टम में एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज आपके क्लास 11th के एनसीईआरटी में, चाहे 9th की हो चाहे 11th की हो, या इस वर्ल्ड में जो भी स्टडी किया जा रहा है एनिमल्स को और प्लांट्स को, तो उसका जो बेस है वो क्या है? वो बेस है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको लिखने से पहले थोड़ा सा समझ लीजिए इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होती है। सपोज दैट आप सब लोग थोड़ा सा जानते हो कि सबसे पहले वर्ल्ड में क्या हुआ होगा, कैसी कंडीशन थी कि लाइफ थी नहीं, रिडक्शन कंडीशन थी, फिर ऑक्सीडेशन कंडीशन आई, ऑक्सीजन इवॉल्व हुई, फिर धीमे धीमे सिंगल सेल्स बनी, जिन्हें 10th में आप पढ़ के आए हो, कोशर वेट्स बोला जाता है, ठीक है। कोशर वेट्स के बाद फिर धीमे धीमे उनमें सिंगल सेल एनिमल्स की स्टार्टिंग हुई, सिंगल सेल के बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हुए, मल्टी सेलुलर के बाद प्लांटी किंगडम अलग हो गया, फंजाई अलग हो गया, एंड सो ऑन। फिर मल्टी सेलुलर में फिर प्लांटी किंगडम, फंजाई किंगडम, एनिमल किंगडम, और उसमें फिर मल्टी सेलुलर और टिश्यूज और फिर ऑर्गेनाइजेशंस, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी आती चली गई। तो इसमें क्या है, यहाँ पर क्या मैं बता रहा हूँ आपको, सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर एनिमल्स आ रहे हैं, तो इवोल्यूशन हो रहा है। आप सब लोग जानते हो, छोटी सी बात बताऊंगा कि सबसे पहले 9th में आप पढ़े हो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, सबसे पहले पढ़ते हो प्रोटोजोआ, फिर पोरीफेरा, ठीक है, फिर नाइडेरिया, फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज, फिर एस्केल्मिन्थीज। उसके बाद और जब आप ब्रॉड वे में जाते हो तो सबसे पहले आता है पिशीज। लाइफ कहां से इवॉल्व हुई है? वाटर से, तो पिशीज आता है। पिशीज के बाद दूसरा कौन सा आता है? पिशीज के बाद एम्फीबियंस आते हैं, दोज हु आर लिविंग इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। उसके बाद कुछ एनिमल्स वाटर में वापस नहीं गए, तो उनमें क्या हुआ, उनकी स्किन ड्राई हो गई, सूख गई, उन्होंने अपने आप को ड्राई एटमॉस्फेयर में लैंड पे अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया, सो वो कन्वर्ट हो गए रेप्टेलिया में। तो पहले फिशीज आया पानी में, फिर एम्फीबिया आया पानी में और लैंड पे, दोनों जगह सर्वाइव करने वाले ऑर्गेनिज्म जैसे कि फ्रॉग, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, थर्ड नंबर पे
आ गए रेप्टेलियंस, जिनकी स्किन क्या हो गई, ड्राई हो गई, स्केली हो गई, उनको कम पानी की जरूरत में होने लगे, उनके बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होने लगा, एग फॉर्मेशन होने लगा, अंडे देने लगे वो लोग, और हाँ कोल्ड ब्लडेड थे वो लोग। ओके, तो एग लेइंग होने की वजह से उनके जो जो पिशीज में क्या था कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन था, तो उसमें एग को, जाइगोट को और अदर उनके बॉडी को क्या करना पड़ता था, सेव करना पड़ता था। बट व्हेन द फर्टिलाइजेशन टेकन प्लेस इनसाइड द बॉडी, इट इज नेचुरली कंजर्व्ड एंड सेव। उनमें बेबी सेव था, बट एक रिस्क था एग को फूटने का या एग को अच्छी तरह सेफ जगह पे रखने का, एग लेइंग का। तो फिर वो बाद में फर्दर एक्सचेंज किया गया विविपैरी से। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप समझ लो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में सबसे पहले कम इवॉल्व वाले को स्टडी किया जाएगा, फिर थोड़ा सा इवॉल्व वाले को, यानी कि पहले पिशीज को, फिर रेप्टेलियंस को, सॉरी पिशीज को, फिर एम्फीबियंस को, फिर रेप्टेलियंस को, रेप्टेलियंस के बाद फिर एवीज को, एवीज के बाद फिर मैमल्स को। ठीक है, तो लास्ट में सबसे हाईली इवॉल्व क्लास कौन सा है, मैमेलिया। तो मैमेलिया में सबसे ज्यादा एडवांस एनिमल्स को रखा गया है। ओके, तो यही जो एक सिनेरियो है कि सबसे लेस डेवलप्ड पहले, फिर उससे बड़ा डेवलप, फिर उससे ज्यादा डेवलप, और फिर लास्ट में सबसे हाईली डेवलप्ड स्पीशीज को रखा गया है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मतलब जब इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इवोल्यूशन की रेस को देख करके और तब क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, इवोल्यूशनरी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। चलो मैंने आपको एनिमल्स के बारे में बता दिया, प्लांट के बारे में आते हैं। जैसे हम लोगों का इवोल्यूशन हुआ है वाटर से, सिमिलरली प्लांट्स का भी इवोल्यूशन वाटर से ही हुआ है। उनमें भी क्या था, सबसे पहले एल्गी आए थे। ओके, आप जानते हो एल्गी, फिर आया था कौन सा, एल्गी के बाद ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा फ्रॉग की तरह है, वो एम्फीबियस ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है। ओके, ब्रायोफाइटा में रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है और वो दलदली जमीन पर उगता है। ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइट्स आए थे। टेरिडोफाइटा में कुछ क्या हुआ था, टेरिडोफाइट्स में जाइलम और फ्लोएम की डेवलपमेंट होने लगा था। ठीक है, और उनके अंदर ट्री के फीचर्स आने लगे थे। फिर टेरिडोफाइटा के बाद जिम्नोस्पर्म, उनमें नेकेड सीडेड प्लांट्स आ गए थे, और जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म, कवर्ड सीडेड प्लांट्स आ गए थे। सो दिस इज इवोल्यूशन। प्लांट्स ने अपने आप को इवॉल्व किया है, एनिमल्स ने अपने आप को इवॉल्व किया है। और जब इवोल्यूशन के बेसिस पर हम किसी भी एनिमल को या प्लांट किंगडम को कैटेगराइज कर देते हैं, सबसे छोटा वाला पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा, एंड दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये समझ में आया आप लोग को? ओके, आई होप। सो एक पॉइंट मिस हो रहा था स्टूडेंट्स, दैट इज हु हैव गिवन द सिस्टम ऑफ दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। So artificial system is classification given by artificial system classification given by Linnaeus, Carolus Linnaeus. He has also given binomial nomenclature, especially for plants and animals, but it is emphasizing only on plants. So artificial system is given by Carolus Linnaeus. It is based on simple character, and natural system of classification given by Bantham and Hooker. These two scientists are different people. These both guys are different. So it is based on morphological structures, some anatomical features, anatomical features. Anatomy क्या होती है बताओ? Anatomy क्या होती है? Internal study. जब आप किसी चीज को बाहर से स्टडी करोगे एक्सटर्नली तो क्या कहोगे? Morphology. और उसको चीज को कट करके उसका TS, LS या VS स्टडी करोगे। TS बोले तो ट्रांसवर्स सेक्शन, LS मींस लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन और VS vertical section. ठीक है, so this is the this classification, natural system of classification has been given by Bantham and Hooker. It is based on the morphological features as well as on the internal structure and anatomical features, some embryological features too. And the third one is very very important, and it is the phylogenetic system of classification given by Hutchinson. Okay, Hutchinson, always remember, it is based on evolution. Okay, ठीक है students. Another heading and most important heading is taxonomical categorization or taxonomical hierarchy. So what is taxonomical hierarchy? HIERACHIAL. स्पेलिंग थोड़ी बहुत इधर हो जाए तो आप लोग मैनेज कर लेना. व्हाट इज टैक्सोनॉमिकल हायरार्की? हायरार्की मींस बेसिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एनीथिंग दैट इज डीलिंग विद फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ पिरामिडल वे और एनी रैंकिंग वे. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पिरामिड, सो टॉप टू बॉटम. ओके, सो इन द टॉप I will start with hierarchy with kingdom. All of you know very well that there are 5 kingdoms in the world.
और आप सबको पता होना चाहिए कि 5 किंगडम क्या है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था, उनका नाम बताइए। R.H. Whittaker। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय R.H. Whittaker। R.H. Whittaker। Okay, so 5 kingdom classification is given by R.H. Whittaker. These 5 kingdom includes Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. So kingdom is the largest unit. Kingdom is largest unit to classify any individual. So अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वन डे एग्जाम में या सिंपल किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि व्हाट इज द लार्जेस्ट किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो क्या बताओगे? लार्जेस्ट किंगडम क्लासिफिकेशन, तो क्या बताओगे? किंगडम। एंड अगर आपसे पूछोगे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो क्या बताओगे? स्पीशीज। तो स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, अब आप थोड़ा सा बीच में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है किंगडम में। जान लीजिए किंगडम सबसे बड़ा होता है, और किंगडम को आप मान लीजिए कि क्या है, किंगडम एक ऐसी बॉल है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे बॉल्स भरे हुए हैं, छोटे छोटे बॉल्स हैं, और इनमें से एक बॉल अगर आपने बाहर करी तो वो क्या हो जाएगा? फाइलम। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना है फाइलम क्या होता है। व्हेन यू आर क्लासिफाइंग एनी एनिमल, जब आप किसी एनिमल का क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उस क्लासिफिकेशन में, एनिमल की क्लासिफिकेशन में कौन सा टर्म यूज करेंगे आप? फाइलम। एंड व्हेन यू आर क्लासिफाइंग एनी प्लांट, देन यू विल यूज द टर्म डिवीजन। जब आप किसी प्लांट का क्लासिफिकेशन करेंगे तो आप फाइलम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब आप कौन से टर्म का यूज करेंगे? तब आप डिवीजन टर्म का यूज करेंगे। तो किंगडम प्लांटी के लिए कौन इस्तेमाल होता है? डिवीजन। और किंगडम एनिमल के लिए कौन डिवाइड होता है? यूज होता है फाइलम। ठीक है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नाउ व्हाट इज फाइलम? फाइलम इज द ग्रुप ऑफ फाइलम ग्रुप्स टू कंबाइन, फाइलम और डिवीजन कंबाइंस टू फॉर्म किंगडम। ओके, नाउ वी विल मूव टू क्लास। व्हाट इज क्लास? तो ये जो आपने एक बॉल यहाँ पे साइड में किनारे करके रखी थी, इसमें फिर से आप ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, इनमें से एक बॉल बाहर निकाल दो, दैट विल अ क्लास। क्लास को फिर से आप बड़ा करोगे, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, इनमें से फिर एक बॉल निकालोगे तो क्या हो जाएगा? ऑर्डर। ऑर्डर में से एक ये बॉल हो गई। फिर इस एक बॉल को आप साइड करोगे तो फिर इसको मैग्नीफाई करके देखोगे बड़ा सा, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे ग्रुप्स हो जाएंगे, तो इसमें से एक निकाल के बाहर कर दोगे, क्या हो जाएगी? फैमिली। फैमिली से फिर बाहर करोगे, ठीक वही कैटेगराइजेशन चल रहा है, और फिर ये जीनस। और जीनस क्या है? जीनस में भी क्या है? बहुत सारे छोटे छोटे बॉल्स है, और इसमें से लास्ट में जो निकलेगा वो क्या हो जाएगी? स्पीशीज। एंड इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, इससे छोटी कोई यूनिट नहीं है, तो स्पीशीज सिंगल रहेगी। ठीक है, तो अब थोड़ा ये जो इधर का है स्ट्रक्चर, इसको समझने की कोशिश करना। मैं नीचे से ऊपर की तरफ आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज द स्पीशीज। स्पीशीज इज इंटरब्रीडिंग group of individuals। ओके, इंटरब्रीड करते हैं मतलब ऐसे एनिमल्स जो सेम हो और आपस में ब्रीड करते हैं, उन्हें क्या कहोगे? स्पीशीज कहोगे। स्पीशीज क्या करेगी? स्पीशीज के ढेर सारे ग्रुप कंबाइंड होंगे एंड दे विल फॉर्म जीनस। व्हाट इज जीनस? जीनस इज द ग्रुप ऑफ अ स्पीशीज। Genus is the group of a species. Genus is group of species. फिर आप देखोगे what is family? तो family is the group of genus. Simple definition. Okay. What is family? Family is the group of genus. And what is order? Order is the group of families. Order is the group of families. What is class? Class is the group of order. And what is class? Class is the group of order. And what is phylum or division? Phylum or division is the group of class. And what is class? What is phylum? Phylum is the group of class. And what is phylum or division? Group of class. And what is kingdom? Kingdom is the group of phylum. Okay, so in this whole world there are 5 kingdoms. They are further divided into different categories, and the last unit of categorization or classification is species.
Species is the smallest unit, while kingdom is the largest unit. One more and very very important thing. These two names, genus and species. आप बहुत ध्यान से इस पॉइंट को सुनिएगा, इस पॉइंट को देखिएगा कि जो जीनस है और जो स्पीशीज है, इन दो नेम्स को मिला के क्या बनता है? इन दो नेम्स को मिला के बनता है साइंटिफिक नेम. ठीक है, यानी कि जेनेरिक नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और उसके बाद स्पीशीज का नेम लिखोगे आप तो सेकंड लेटर स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा. तो इन दोनों को मिला के कंबाइंड होकर क्या लिखा जाता है? किसी भी प्लांट का या एनिमल का साइंटिफिक नेम लिखा जाता है. सो दिस इज द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. इट इज डिवाइडेड इनटू ईच टैक्सॉन और रैंक. ओके, समझ गए? ठीक है, गुड. ओके स्टूडेंट, नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टैक्सोनॉमिकल एड्स. This is not the disease AIDS. You may confuse with it. AIDS means the things which helps us, which enables us to study any important thing. So what is taxonomical aid? Taxonomical aid means the aids, the things that will help me to study about taxonomy. So number one, the first aid is herbarium. What is herbarium? Herbarium, आप क्लास 6 में या 7th में या 8th में आपके मैम ने, आपके सर ने एक फाइल बनवाई होगी आपसे. ठीक है, क्लास 9th में 10th में खूब टीचर्स बनवाते हैं. इस फाइल में यहाँ पे कॉर्नर पे क्या होता है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन होता है इस पेज पे, और यहाँ पर किसी भी प्लांट की लीफ को आप पेस्ट कर देते हो. ठीक है, उसके फ्लावर को आप पेस्ट कर देते हो, उसके रूट्स को आप फिक्स करके लगा देते हो ड्राई करके. सो हर्बेरियम इज द ड्राइड and pressed and preserved. मैंने क्या बोले? 3 terms: dried, pressed and preserved sample of any plant. जब किसी भी प्लांट को उसके लीफ, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट और रूट के साथ दबा दिया जाता है किसी बुक के अंदर रख के, उसको प्रेस करके उसके ऊपर एक बड़ा सा वेट रख के, एंड आफ्टर फ्यू डेज वो उसके साइटोप्लाज्म ड्राई हो जाता है, पेपर उसका साइटोप्लाज्म और जूस उसका एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो सूख जाता है. उसी स्पेसिमन को उठा के एक शीट पे चिपका देते हैं. तो शीट को क्या बोलते हो आप? हर्बेरियम शीट बोलते हो. ये आप सबने बनाई होगी क्लास 6 7th में, और आप 11th में अच्छे से जान लीजिए कि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्टैंडर्ड साइज जो होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और ये आपको पता होना चाहिए. तो हर्बेरियम शीट जो होती है, इसके ऊपर फिक्स किया जाता है हर्बेरियम शीट के ऊपर, और इसको फिक्स करने के बाद हम स्टडी कर सकते हैं स्पेसिमेन को किसी भी सीजन में. आपका मान लीजिए आप पी प्लांट का सीजन दिसंबर में होता है, और किसी भी स्टूडेंट को स्टडी करना हो तो हम जून में भी पी प्लांट को स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हर्बेरियम शीट और हर्बेरियम फाइल. तो हर्बेरियम शीट भी होती है, हर्बेरियम फाइल भी होती है, और एक प्लेस भी होता है हर्बेरियम जहां पर बहुत सारा कलेक्शन होता है वर्ल्ड के डिफरेंट कॉर्नर से लाए हुए प्लांट को प्रिजर्व करके और ड्राई करके रखा जाता है उन्हें स्टडी के पर्पज से. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और दुनिया का सबसे बड़ा हर्बेरियम है, कहाँ पर है? क्यू. वो तो बोटानिकल गार्डन है. हर्बेरियम कहाँ पर है? इंग्लैंड में है. क्यू इंग्लैंड में ही है. क्यू इंग्लैंड में, यस, सॉरी फॉर दैट. हाँ, दोनों चीजें वहीं पे, सॉरी, वो एक ही कैंपस में है, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था. एनीवेज, सो नेक्स्ट वन इज बोटानिकल गार्डन. इसका स्टैंडर्ड साइज मैं आपको भी बता दूंगा. स्टैंडर्ड साइज पूछा जाता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. What is the standard size of any herbarium sheet? It is 42 centimeter into 29 centimeter. ये आप लोग को लर्न रखना, याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, वन डे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है आपसे, नीट में या आपके जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है. द नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड इज बोटानिकल गार्डन. What is botanical garden? It is the place where the endangered, herbal, medicinal plants or trees are grown. ऐसा प्लेस जहां पर या तो इंडेंजर्ड स्पीशीज को ग्रो करा जाएगा कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या हर्बल या मेडिसिनल प्लांट को ग्रो कराएंगे ताकि हम मेडिसिन को आइसोलेट करें. फॉर एग्जांपल, आपके लखनऊ में बोटानिकल गार्डन बना हुआ है, NBRI, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट. तो लखनऊ का सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो किया गया, और उन्हीं प्लांट्स में से
एक प्लांट से बनाई गई है नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड उसका नाम है सहेली, ठीक है। और वो क्या है, प्लांट से एक्सट्रैक्टेड है तो उसमें कोई भी हार्मोन नहीं है, नॉन हार्मोनल है, और वो क्या है, साइड इफेक्ट उसका 0 है, और उसका जो कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है बहुत हाई है। तो इट इज वेरी चीप एंड वेरी वेरी सेफ टैबलेट फॉर द women those who are they are avoiding pregnancy naturally. Okay, so they have prepared a very well due to the presence of botanical garden. The institution name is CDRI, Central Drug Research Institute. क्लास 12 में आप लोग इसके बारे में जानोगे। ओके, सो नेक्स्ट, बॉटनिकल गार्डन लंदन में ही है, क्यों में, वो भी लार्ज, दुनिया का सबसे बड़ा है। और इंडिया का जो सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है वो कहाँ है, कोलकाता में। कहाँ है, कोलकाता में, ठीक है। कलकत्ता इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता भी कह सकते हो, कलकत्ता भी कह सकते हो, ओल्ड नेम उसका वो है, ठीक है। एनीवे, तो कलकत्ता याद रखिएगा और इंडियन बॉटनिकल गार्डन नेम याद रखिएगा। नेक्स्ट, नंबर 3, म्यूजियम। तो ये जो क्या है, यहाँ पर क्या है, हर्बेरियम में ड्राइड एंड प्रिजर्व प्लांट्स को रखा जाता है और यहाँ पर लिविंग प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है। ये तो दोनों हो गई चीजें प्लांट के बारे में। अब हम आपको बताएंगे एनिमल के बारे में। तो म्यूजियम में क्या होता है, डेड एंड डिके नहीं, प्रिजर्व। जब डिके हो जाएगा तो उसका हम करेंगे क्या, सड़ जाएगा तो खराब हो जाएगा हमारे लिए, है ना। तो उसको प्रिजर्व कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने ममीफिकेशन सुना होगा, इजिप्ट में ममीज, डेड बॉडीज को मसाला लगा के, केमिकल्स लगा के उनको प्रिजर्व कर देते हैं। वो आज भी डेड बॉडी वैसे ही रखी हुई है इजिप्शियन ताबूतों के अंदर, ठीक है। सो म्यूजियम्स आर द प्लेसेस वेयर डेड एंड प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिजम्स आर केप्ट, ओके, फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी। नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड इज जूलॉजिकल पार्क। ये आप सब लोग छोटे बच्चे हो गए, आपके फैमिली में छोटे बच्चे हैं, आप लोग खुद छोटे हो गए तो घूमने गए होगे लखनऊ में, इसको जू कहा जाता है या जूलॉजिकल पार्क कहा जाता है। Here the animals are kept for the purpose of protection. जिन एनिमल्स को प्रोटेक्शन की नीड होती है, जो वो endangered स्पीशीज होती है, अंडर थ्रेट होते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। मान लिया पोचिंग कर लिया किसी ने, मार के खाल निकाल ली, इंटरनेशनल मार्केट में करोड़ों में बेच दी और उसकी स्पीशीज पूरी एक्सटिंक्ट हो गई। हाँ, तो अंडर आर्टिफिशियल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस व्हेन एनिमल्स आर केप्ट, दिस इज कॉल्ड जूलॉजिकल पार्क। ओके, जूलॉजी से ही पता चला, जूलॉजी बोले तो एनिमलिया, किंगडम एनिमल, ठीक है। So where is the zoo? Where is the zoo in India? Largest zoo कौन सा है, किसी को मालूम है? लार्जेस्ट कौन सा जू है, या जू है कह लो, या जूलॉजिकल पार्क है? इंडिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पे? ओके, एनीवेज कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा नेट पे, मुझे भी एक्चुअली पता नहीं है, बट कानपुर का मैंने सुना है बहुत फेमस है। लखनऊ का तो आप सब लोग गए होंगे, है ना, काफी फेमस है। फिर अब बात करेंगे की के बारे में। आप की के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए डिटेल में, बट मैं जू तो नहीं जानता, लेकिन हाँ, नेशनल पार्क अपने लखीमपुर में है, उसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क एंड इट इज वन एंड ओनली उत्तर प्रदेश का इकलौता नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। यहाँ पर कौन सी स्पीशीज को कंजर्व किया गया है, बताइए जरा, किस चीज को कंजर्व किया गया है यहाँ पे? टाइगर को, और टाइगर को तो साइड में कंजर्व किया गया। मेन प्रोजेक्ट जो चला था वो चला था राइनो के लिए, राइनोसोरस के लिए, गैंडे के लिए, ठीक है। और बाकी डियर वगैरह तो मिलते ही हैं और ये बहुत ही एक ह्यूज है। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व मिला के एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ये टाइगर का कंजर्वेशन का। ये पूरा दुधवा पीलीभीत सब कवर करता है। इट इज अबाउट 132 मोर देन 130, उससे भी ज्यादा, है ना। ओके, नाउ आई एम मूविंग टू द लास्ट टैक्सोनॉमिकल एड, इट इज की क्या होता है? आप सब लोग जानते हो कि मान लीजिए कि ये की है, चाबी है, तो ये किसी चीज में क्या होगा, किसी लॉक में फिट होगी, और लॉक में फिट होने के बाद क्या होगा, ये इसी चाबी से इसका लॉक खुलेगा और किसी और चाबी से लॉक नहीं खुलेगा। मतलब स्पेसिफिसिटी, एक पर्टिकुलर चाबी से एक पर्टिकुलर लॉक खुलेगा, कोई दूसरा आप चाबी लेके जाओगे, दूसरे लॉक में डालोगे, घुमाओगे, नहीं खुलेगा। ओके, इसका क्या मीनिंग है, इसकी का क्या मतलब है? इसका मतलब ऐसे है कि किसी भी प्लांट को जब टैक्सोनॉमिकली आप क्लासिफाई करने जाओगे तो हर प्लांट का एक स्पेशल फीचर होता है, वो उसी प्लांट में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपको कीज बताऊंगा, कीज मतलब मैं फीचर्स बताऊंगा आपको, इसको आप फीचर्स भी कह सकते हो, और आप उस प्लांट का नाम बता दोगे। ओके, आई एम टेलिंग अबाउट द कीज एंड यू विल टेल मी द नेम ऑफ दैट प्लांट। ओके, सो दिस प्लांट प्रोड्यूसेस येलो कलर्ड फ्रूट इन द सीजन ऑफ मई एंड जून। Mango. So what is the yellow color fruit? It is a key. Okay, next key I am telling to you, a plant that produces a compound leaf and its leaves are crushed to
found a juice, and that juice is antiseptic and used aloe vera. as medicinal value. Neem. Also aloe vera, but aloe vera is not having compound leaves. Aloe vera have a spiny leaf. It is xerophytic plant. Okay, तो एलोवेरा के बारे में अगर मैं बताऊं कि a leaf that is modified into spine and its stem is succulent and produces thick juice. So this is aloe vera. Okay, so some important features, some important points that are related specifically to the particular plant, it is called its key. ओके तो हम किसी भी जब खास बात के बारे में बताएंगे किसी प्लांट के, उसको हम क्या बोलेंगे? की बोलेंगे. ओके, एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. एक ऐसा ट्री जिसकी लीफ को तोड़ करके उसका लैटेक्स किसी की आंख में डाल दो तो आंख फूट जाएगी. कैलोट्रोपिस या मदार. ठीक है, उसका जो वर्नाकुलर नेम है, जो लोकल नेम है वो मदार है, और जो जूलॉजिकल बॉटनिकल नेम है सॉरी वो क्या है? कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, मदार. ठीक है, एक और छोटा सा की मैं बताता हूं आपको. शिव जी पे चढ़ाया जाता है, गोल गोल कटीला फ्रूट होता है, क्या? तो मैंने आपको की बता दी, आपको धतूरा. यस, इट इज डेट्यूरा इन इंग्लिश, डेट्यूरा स्ट्रेमोनियम. इट बिलोंग्स टू फैमिली सोलेनेसी एंड इट इज हैविंग अ मेडिसिनल वैल्यू. एक आपने कहावत पढ़ी होगी, कनक कनकते सौगनी मादकता अधिकाय, या पाए बौरा है या खाए बौरा है. तो खा के बौरा जाना मीन्स क्या? उसमें कुछ क्या है? उसमें कुछ हेलुसिनोजेनिक है, उसमें कुछ नार्कोटिक्स है, मतलब नशीला है. उसको खा के इंसान पागल हो जाता है, नशे में आ जाता है, या उसको नुकसान कर जाता है. ओके, तो वो आपको हम 11th में आगे जब क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे और प्लांट्स के बारे में पढ़ाएंगे, फैमिली सोलेनेसी, उसमें डिस्कस करेंगे डेट्यूरा के बारे में. ओके, सो दीज आर फ्यू फीचर्स. हम क्विक रिवाइज करेंगे. तो टैक्सोनॉमी मतलब क्या होता है? किसी प्लांट को क्लासिफाई करना, और उसको क्लासिफाई करने में हेल्प करने की जरूरत पड़ेगी. तो हेल्प कौन करेगा? टैक्सोनॉमिकल एड्स. और वो एड्स है 5 है. कौन कौन से? पहला हर्बेरियम, जहां पर प्लांट को प्रिजर्व और ड्राई करके प्रेस करके रखते हैं, शीट पे चिपका के फाइल बनाते हैं, अलमारी में रख देते हैं, उसको हर्बेरियम बोलते हैं. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हर्बेरियम कहाँ है? इंग्लैंड में है, क्यू में. और उसके बाद दूसरा है बोटानिकल गार्डन. बोटानिकल गार्डन क्या होता है? जहां पर प्लांट को लिविंग कंडीशन में ग्रो कराते हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज को, मेडिसिनल प्लांट को, ट्रीज को. लखनऊ में आपका बोटानिकल गार्डन है, NBRI. उसके बाद 3rd नंबर पे क्या है? म्यूजियम, जहां पर डेड और प्रिजर्व्ड एनिमल्स को स्टडी करने के लिए रखा जाता है. जैसे डियर्स के जो सींग होते हैं, हिरण के सींग और बारहसिंगा के सींग है, या स्किन है एनिमल्स की, वहां रखी जाती है. एनिमल्स को केमिकल्स में प्रिजर्व करके रखा जाता है. हाँ, एक आपके बायोलॉजी लैब में भी छोटा सा म्यूजियम होता है, बता सकते हो कहाँ होता है? छोटा सा कांच के जार में फॉर्मेल्डिहाइड में या फॉर्मेलिन में, aqueous solution ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, एनिमल्स को डिप करके रखा जाता है, वो भी प्रिजर्व करके रखते हैं. तो वही म्यूजियम की टेक्निक यूज करके आपको स्टडी कराते हैं बायोलॉजी लैब में, ताकि आप स्पेसिमेन को स्टडी कर सको. वो भी म्यूजियम तो नहीं कह सकते, लेकिन उसी का टेक्निक यूज किया जाता है. देन जूलॉजिकल पार्क, इसको जू कहते हैं. यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर इंडेंजर्ड एनिमल्स को किसमें रखते हैं? इन या अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस रखते हैं. आर्टिफिशियल क्लाइमेटिक कंडीशंस. वेरी गुड. सो दिस इज जू. एंड द लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज की. की क्या है? स्पेशल फीचर है हर प्लांट के बारे में. यस, या. तो इट इज यूज्ड टू क्लासिफाई एनी प्लांट और एनी एनिमल, स्पेशली टू द प्लांट्स.